Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. I hope all of you have passed your exams with flying colors. Congratulations on your well-deserved success. As you all know that textbooks are going to change this year for classes 4th, 5th, 7th and 8th, and right now few textbooks only have come out. So today we are going to start with class 7th English textbook. This is Purvi, and we are going to start with the lesson 1 from this textbook Purvi for grade 7. The contents of this textbook are as follows. Unit 1, Learning Together. The lessons are The Day the River Spoke, Try Again, 3 Days to See. Unit 2, Wit and Humor. Animals, Birds and Dr. Dolittle, A Funny Man, Say the Right Thing. Unit 3, Dreams and Discoveries, My Brother's Great Invention, Paper Boats. North, South, East, West. Unit 4, Travel and Adventure, the Tunnel, Travel, Conquering the Summit. Unit 5, Brave Hearts, a homage to our brave soldiers, My Dear Soldiers, Rani Abakka. So today we are going to start chapter 1. The name of the chapter is The Day River Spoke. We are going to complete reading, word meanings and explanation in this video. So let's get started. Unit 1, Learning Together. The name of the lesson is The Day the River Spoke. So let us do these activities before we read. So there are few activities which we are going to start before reading the lesson. Okay, close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute. Are they trying to tell you something? Do you think the things around you also listen to you all day long? Share your answers with your classmate and teacher. So what do we have to do in this? Close your eyes. Wherever you are sitting, just close your eyes for a minute and just quietly listen to the sounds which you can hear. If suppose you are sitting in your room, close your eyes quietly and listen. Then listen to the sounds which you can listen around. Are they trying to tell you something? Yes, they are trying to tell me something. For example, if I am sitting in a park, okay, so I see trees around, birds there. So birds will tell me that we should be free to fly, we should do whatever we want to do. Trees tells us to give and sacrifice always. Okay, do you think the things around you also listen to you all day? So do you think that these things which are around you, wherever you are sitting, either you are sitting in a room or you are sitting in a park or you are sitting in a school, okay, so things which are around you, do you think that they also listen to you all day long? Yes, they listen to us. Okay, so we are going to start with the lesson, The Day the River Spoke. I just want to ask you first, if when we talk about nature, trees, plants, river, mountains, all these come into nature. So if suppose we are going to a place, for example, we have gone to a park, okay, in a garden, you can say in a garden. So when you go to a garden and if you are sad or you are happy, then do you sometimes talk to a tree or flowers over there? Do you share your feelings with these flowers or trees? Have you ever seen them talking back to you? No, right? So in this story, we are having a small little girl named Janvi, who is a young girl who lived with her parents, and she's having brother sisters also, and her parents
She lived with her parents. So she is having a dream in this lesson. We'll come to know when we'll read about the dream, that what is a dream and how the dream comes true, and what happens when one day she was sitting beside a river. Okay, let's come to question number 2. Janvi was a bright young girl who lived with her parents and 3 brothers in coastal village in India. तो जानवी क्या है, एक ब्राइट गर्ल, यंग गर्ल है जो अपने पेरेंट्स के साथ और 3 ब्रदर्स के साथ एक कोस्टल विलेज में इंडिया के रहती है. हर पेरेंट्स वर्कड ऑन अ फार्म, उसके पेरेंट्स फार्म पे वर्क करते हैं और उनका एक, जो जानवी है उसका एक ड्रीम है. शी हैड अ ड्रीम, सपना है. what could be her that dream be. अब we have not read the lesson right now, तो हम just generally एक general way में we are going to answer this, that what could be her dream. उसका ड्रीम क्या हो सकता है. वो अपने एक यंग गर्ल है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, उसके ब्रदर्स भी हैं साथ में, तो उसके पेरेंट्स जो है वो फार्म में वर्क करते हैं और जानवी का एक ड्रीम है. तो जानवी का क्या ड्रीम हो सकता है. हर ड्रीम कुड बी टू हेल्प हर पेरेंट्स एंड एवरीवन इन द विलेज बिकॉज शी इज लिविंग इन अ विलेज. तो और पेरेंट्स आर वर्किंग ऑन अ फार्म, सो उसका ड्रीम हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करें उनके काम में और विलेज में जितने लोग हैं उनकी हेल्प करें. हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम ट्रू. अब अपना जो ड्रीम है उसको कैसे सच कर सकती है, सपने को कैसे सच कर सकती है. शी कुड स्टडी हार्ड. इफ शी विल स्टडी हार्ड तो क्या होगा, शी विल बी एबल टू हेल्प हर पेरेंट्स इन देयर वर्क एंड एवरीवन इन द विलेज इफ शी विल स्टडी हार्ड. What is your dream? What can you do to make your dream come true? आपका ड्रीम क्या है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है. यू कैन बी अ टीचर, राइट. यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू वांट टू बिकम अ इंजीनियर. सो व्हाट इज योर ड्रीम. आई हैव टेकन माय ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर. एंड आप उसे फुलफिल कैसे करेंगे, उस ड्रीम को कैसे ट्रू करेंगे. आई विल स्टडी हार्ड एंड हेल्प अदर्स. Okay, so this is on general basis we have given answer to these questions over here. Now we are going to start reading the lesson, The Day the River Spoke. As the name only suggests you that the name of the lesson is The Day River Spoke. It means the river is speaking over here. So we have two main characters in this story. One is Janvi. As you can see, Janvi sitting beside the river. Yes, you can see there is some grass over here, grass, then trees, small trees are there. Then this is a kingfisher, lizard is slithering over here. Okay, you can see here a kingfisher is there, and then here a lizard in this picture. Then parrot also you can see over here, right. So two main characters are Janvi and the other one is river. Okay, it is non-living, but here it is in this lesson it has been shown that the river is having some human being qualities. It can speak. Okay, so let's get started. As you can see, Janvi sitting beside the river. She is sad and she is crying. So every day she used to come near this river and sit over here and used to talk about her feelings with this river. So one day what happened? The river spoke. A big bright tear splashed down her nose, and another, a kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. So हमने क्या पढ़ा कि एक जो है जानवी की आई से एक टीयर जो है, आंसू जो है वो स्प्लैश होके उसके नोज के पास से नीचे गिर जाता है. क्या स्प्लैश का मीनिंग क्या है, फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड. व्हेन यू क्राई तो आप क्या होता है, आपके जो टीयर्स होते हैं वो आइस से नीचे गिरते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्प्लैश. एंड अनदर, एक टीयर गिरा, फिर दूसरा टीयर गिरा, एंड अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन. किंगफिशर आपको ये नजर आ रहा है या ब्लू कलर का, किंगफिशर जो है वो नीचे की तरफ आया. इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट. आपको ऐसा लगता है इसके जो विंग्स है इट्स एरो की तरह जो है वो नीचे आ रहे हैं और सनलाइट में ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं. एंड अ ग्रीन लिजर्ड, यहाँ पर एक ग्रीन लिजर्ड है. स्लिदर्ड डाउन, स्लिदर्ड का मतलब होता है मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड. ठीक है, जो नीचे स्लाइड करते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लिदर. तो जो ग्रीन लिजर्ड है वो स्लिदर करके जो है वो नीचे स्लाइड करके जो है वो रिवर की एज पे जा रही है. टू बास्क इन द सन. बास्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बास्क? टू सिट और लाई इन अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय द वार्मथ. लाइक
आप जब सर्दियाँ होती हैं तो आप क्या करते हो, आप बाहर बैठते हो या आप पार्क में जाते हो, तो आप क्या करते हो, अपने घर के बाहर बैठ जाते हो, बालकनी में बैठ जाते हो या पार्क जाते हो, वहाँ पर क्या करते हो आप, सन की लाइट लेने की कोशिश करते हो, धूप सेकते हो, है ना। तो बास उसको ही कहते हैं धूप में बैठना, ठीक है। तो जो ग्रीन लिजर्ट है वो एक एज पे, रिवर की एज पे बैठी है, क्यों बैठी हुई है, धूप जो है वो वार्मथ लेने के लिए, टू एंजॉय द वार्मथ। डियर डियर सेड अ स्लीपी murmuring voice, what's the matter? Janvi was startled. स्टार्टल्ड क्या होता है, एकदम से सरप्राइज हो जाना, एकदम से आवाज आई, अब वो वहां बैठी हुई है, ठीक है, और वो वहां बैठ के रो रही है, तो एकदम से उसको आवाज आई, डियर डियर। एक स्लीपी और मरमरिंग मतलब कि जैसे हम विस्पर करते हैं ना किसी के कान में, जब हम कुछ बोलते हैं तो कुछ धीरे धीरे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मरमरिंग। मरमरिंग का मतलब होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, धीरे से बोलना, मरमरिंग वॉइस, कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, व्हाट हैपेंड। जानवी वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स surprised because she was sure she had been quite alone. उसको पता था कि वो वहां पर जो बैठी हुई है रिवर के पास अकेली बैठी है, इसलिए वो देखकर सरप्राइज हो। ठीक है, आप भी ऐसे कहीं अगर अपने रूम में बैठे हो, अकेले बैठे हो, ठीक है, और सब कुछ जो है आप वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और एकदम से आपको आवाज़ आती है, तो आप भी डर जाओगे कि यहाँ मैं अकेली हूँ, आवाज़ कहाँ से है। तो सेम वे जानवी जो है वो भी सरप्राइज हो गई, क्योंकि वो वहाँ अकेले बैठी हुई थी। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजर्ट एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द thicket of bamboo eating the fish it had caught. तो उसने सोचा कि ये लिजर्ट तो नहीं हो सकती जो बोल रही है, और किंगफिशर जो है वो थिकेट ऑफ बैम्बू, थिकेट मीन्स कि डेंस मतलब बहुत घने ग्रुप में, ट्रीज के ग्रुप में, बैम्बू के ग्रुप में जाकर वहां पर फिश को जो पकड़ के लाया उसको खा रहा था, ठीक है। इट कुड नॉट बी द पैरेट्स बिकॉज पैरेट्स श्रीक्ड, पैरेट्स हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि पैरेट की जो साउंड होती है ना, जो जिस आवाज में वो बोलते हैं वो बहुत हाई पिच साउंड होती है, और वो मतलब ऐसा लगता है श्रीक कर रहे हैं, श्रीक का मतलब होता है जो हाई पिच साउंड होती है, मेड अ हाई पिच साउंड। एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, उनकी आवाज़ जो है बड़ी तीखी होती है, पैरट्स की आवाज़ जो होती है बहुत ज़्यादा तीखी होती है, और ये जो आवाज़ थी ये बहुत एक स्लीपी वॉइस में थी, जैसे कि कोई सो रहा हो, वो सोकर उठा हो, जब हम सोकर उठते हैं हमारी आवाज़ थोड़ी सी चेंज होती है, तो वो वैसी ही आवाज़ थी। शी लुक्ड अराउंड हर, देयर वॉजंट अ सोल इन साइट, शी वॉज रेदर स्केयर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे। तो उसने आसपास देखा, देयर वॉज अ सोल इन साइड मतलब वहां पर कोई भी नहीं था, ठीक है, तो वो शी वॉज रेदर स्केयर्ड, वो डर गई, एंड वहां से वो भागने की, उसने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, वहां से भागना चाहती थी वो। शी शुड नॉट क्राई यू नो, यू शुड नॉट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड when you have been coming here to see me every day, well almost every day. So फिर आवाज आई कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रोना चाहिए, क्यों, तुम क्यों डर रही हो, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए जब तुम यहाँ पर रोज आती हो मुझसे मिलने, ऑलमोस्ट एवरी डे। शी वॉज puzzled. It was such a voice like the river. It could not be river. तो वो बहुत पजल थी माइंड में, क्यों, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था आवाज कहाँ से आई है, किसकी वॉइस है। फिर उसको लगा शायद ये रिवर की वॉइस होगी, बट फिर उसे लगा कि रिवर कैसे बोल सकती है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, फॉर इट वॉज अ रिवर, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो। तो रिवर ने बोला, अच्छा मुझे बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, ठीक है, और जल्दी से बताओ क्योंकि मुझे सी तक जाना है, सी में जाना है, सी में मिल जाना है, तो इसलिए वहां पर मुझे जल्दी पहुंचना है, तो मुझे जल्दी से बताओ। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी, आई आस्क्ड माय मदर, why can't I go to school like Ethan and Meena? And mother had replied, you are too small, baby. Maybe later. But when she was 5, little Ramu was born, and mother still said, maybe next year. Janvi, mind your little brother while I go to the fields. Now she was nearly 10 and minding little Apu, who was the smallest. They don't want me. They only. She stopped with a sob.
सो उसने बोला, जानवी ने क्या बोला कि मुझे स्कूल नहीं जाने दिया जाता। मैंने अपनी मदर से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं उसने पूछा कि मैं अपने ब्रदर्स की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती, एतन और मीना जो है इनकी तरह से, इनकी जैसे ये स्कूल जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकती। तो मदर ने कहा अभी तो तू बहुत छोटी है बेटा, तो स्कूल नहीं जा सकती, अभी तो तुम सिर्फ 5 ईयर्स की हो। उसके बाद बट जब वो 5 ईयर्स की, बहुत छोटी थी, जब वो 5 ईयर्स की हुई उसके बाद लिटिल रामू ने बोला, लिटिल रामू बॉर्न हुआ, जब उसका थर्ड ब्रदर बॉर्न हुआ तो मदर ने स्टिल यही बोला कि ठीक है नेक्स्ट ईयर। पर जानवी जो है अभी तक अपने छोटे भाई को, रामू का ही ध्यान रखती, और वो अभी तक, वो 10 ईयर्स की थी, अभी तक वो स्कूल नहीं गई थी। ठीक है, दे डोंट वॉन्ट मी, तो वो क्या बताती है कि वो मुझे नहीं जाने देना चाहते। दे ओनली, ये इतना बोल के वो रुक जाती है। शी स्टॉप्ड विद अ सॉब। सॉब क्या होता है? सॉब टू क्राई वाइल टेकिंग इन सडन शार्प ब्रेथ्स टू स्पीक वाइल यू आर क्राइंग। जब हम कई बार रोते हैं तो रोते रोते एकदम से क्या होता है कि हम कुछ बोलने लग जाते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो हम सिसकियाँ ले लेके बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉब। तो बीच बीच में बोले जा रही थी, बता रही थी कि ऐसे मेरे ब्रदर्स हैं। जब वो मैंने अपनी मदर से पूछा तो उन्होंने कहा अभी तुम छोटी हो। फिर उसके बाद मेरा जो है वो एक और ब्रदर पैदा हो गया, फिर मैं उसका ध्यान रखने लग गई, और अभी तक मैं 10 ईयर्स की हूँ, अभी तक मैं स्कूल नहीं गई, और मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल नहीं जाने देते। I'm scared to go to school and I am so old now they'll never let me go, but I want to go। उसने कहा मुझे अब डर लगता है स्कूल जाने से, और अब मुझे लगता है कि मैं अब उस एज को क्रॉस कर चुकी हूँ जो स्कूल जाने की होती है, और मुझे ये स्कूल नहीं जाने देंगे, बट मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एतन एंड Meena. Janvi called her brother Ethan. Ethan means elder brother, but his real name was Gopi. तो एतन बुलाती थी वो अपने बड़े ब्रदर को। एतन का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, बट उसका रियल नेम था गोपी। I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo tree rustle, why moon always comes from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water become frogs, why। तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वाई। ठीक है, तो वो जानना चाहती थी सबके आंसर, जैसे कि स्पाइडर जो है वो येलो फ्लावर्स में जाके येलो क्यों हो जाते हैं, बैम्बू ट्री जो है वो रसल क्यों करते हैं। रसल क्या होती है? एक तरह की जो है साउंड होती है, जैसे ड्राई लीव्स या कभी पेड़ हिलते हैं तो एक आवाज़ आती है। लीव्स जो है वो जब एक दूसरे के आसपास हम रब करते हैं तो एक तरह की आवाज़ आती है, लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। और मून जो है वो हमेशा हिल्स के पीछे से क्यों आता है, किसी और तरफ से क्यों नहीं आता। और बेबी फिश जो है वो फील्ड वाटर में ऐसा क्यों लगता है कि वो फ्रॉग है। स्टॉप सेड द रिवर, यू मेक मी ब्रेथलेस। उसने कहा, रिवर ने क्या बोला, स्टॉप, रुक जाओ, तुम इतने क्वेश्चन पूछ रही हो, पूछते जा रही हो वाई 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 वाई, तो रुक जाओ। सो मेनी वाइज आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटली। तो उसने कहा इतने सारे वाई, और मैं बता सकती हूँ कि मून जो है वो कहाँ जाता है, वेयर द मून गोज। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटली, मतलब कि सीक्रेटली, धीरे से बोला उसने। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, उसने बताया कि जो मून है वो कहाँ जाता है, सी के, इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी के पास जाता है। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। तब माउंटेन से ऊपर आता है और फिर उसके बाद वो सी की तरफ नीचे चला जाता है। लेट अस डिस्कस, वी हैव टू क्वेश्चंस ओवर हियर। व्हाट वाज जानवीज ड्रीम? तो आपको आई थिंक सो ये समझ आ गया होगा कि जानवी का क्या ड्रीम था, कि शी वांटेड टू गो टू स्कूल। व्हाई व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हर, क्यों इम्पोर्टेंट था उसका स्कूल जाना। Janvi's dream was that she wanted to go to school. Yes, it was important to her because she had many questions in the mind which could be answer only if she is going to school. तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि आंसर तभी हो सकते थे जब वो स्कूल जाएगी। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम? हाउ, क्या रिवर उसे हेल्प कर सकती थी? यस, रिवर हेल्प कर सकती थी। हाउ? बाय मोटिवेटिंग और encouraging her to go to school. Yes, the river helped Janvi in fulfilling her dream by encouraging her to go to school. Okay. Even little Ramu goes to school, said Janvi. Pity the
School isn't by the sea, said the river. Even then I could take you along, you know, but I suppose I could not really. You had get your feet wet, and that would never do. I am afraid there's only one thing you can do. So उसने क्या बोला कि इवन लिटिल रामू जो है वो भी स्कूल जाता है, जानवी ने बताया कि वो भी स्कूल जाता है. तो रिवर ने बोला कि अगर स्कूल जो है वो सी के पास होता तो मैं भी तुम्हें वहां ले जाती. ठीक है. कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी. वेल इट्स अप टू यू, सेड द रिवर. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. उसने कहा क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, जानवी ने पूछा. उसने कहा ठीक है, तुम कुछ कर सकती हो, तुम्हारे ऊपर है. मुझे लगता है कि लिटिल गर्ल्स जो है वो बॉयज से भी ज़्यादा फास्ट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग का एग्जाम्पल दिया कि बॉयज से भी ज़्यादा फास्ट जो है वो गर्ल्स स्विम करती हैं. यू कैन जस्ट स्लिप. एक दिन ऐसा करो, अचानक से मॉर्निंग में स्कूल चली जाओ, वहां जाके बैठो, जो भी वहां हो रहा है टीचर को ध्यान से सुनो, और फिर हो सकता है टीचर जो है वो तुम्हें वहां पर रहने दे. आई कुड नॉट, गैस जानवी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस? गैस मीन्स टू टेक अ साउंड, टू टेक अ सडन लाउड ब्रेथ. जब हम एकदम से अचानक से जो है लाउड ब्रेथ लेते हैं विद अपना मुंह खोल के. ठीक है. जब हम सरप्राइज हो या पेन में हो तो हम जो है वो सांस जोर जोर से लेने लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गैस्प. ठीक है. एंड पिटी, पिटी वर्ड इज ओवर हेयर, गिवन हेयर, फर्स्ट लाइन में दिया है. पिटी का होता है किसी पे दया करना. अ सडन फीलिंग ऑफ सैडनेस यू हैव फॉर समबडी इफ यू फील समवन इज इन ट्रबल. जब कोई ट्रबल में हो तो हमें उस किसी के ऊपर दया आ जाती है, उसे हम बोलते हैं पिटी. ठीक है. तो आई कुड नॉट, दे दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट. तो जानवी जो थी वो स्कूल जाने से डर रही थी. कह रही थी मुझे डर लगता है, मुझे यहाँ पे लोग क्या करेंगे, चिढ़ाएंगे, बच्चे जो होंगे वो चिढ़ाएंगे. द रिवर लाफ्ड. यू स्केयर्ड, द रिवर सेड, व्हेन यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ ग्रीन लिजर्ड और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प. Janvi startled, or the big trains rattling past that bridge. Trains are noisy, I prefer ship, said the river. So रिवर जो है वो हंसने लगी कि तुम डर रही हो, तुम तो ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरी. ग्रीन लिजर्ड जो है वो यहीं पर थी तो उससे नहीं डरी. स्नेक जो बैम्बू क्लम्प में था, क्लम्प क्या होता है, जहाँ पर छोटे छोटे ट्रीज के ग्रुप बने होते हैं उनको, उसको हम क्लम्प बोलते हैं. तो जो स्नेक्स होते हैं बैम्बू के क्लम्प में, वहाँ उनसे तुम नहीं डरी. बिग ट्रेन्स रैटलिंग, रैटलिंग जो एक तरह की नॉइज होती है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को शेक करने से आती है. ठीक है. जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बेबीज जो है वो रैटल्स के साथ खेलते हैं, उससे आवाज़ आती है, जैसे उसे हिलाते हैं तो उससे आवाज़ आती है. तो रैटल्स के साथ जो रैटलिंग ट्रेन जो रैटल कर रही हैं, ब्रिज के ऊपर चल रही हैं, तो वो आवाज़ आ रही है. तो ट्रेन से भी तुम नहीं डरी, उसकी आवाज़ से भी तुम नहीं डरी. ट्रेन नॉइजी होती है इतनी. और रिवर ने बोला कि मैं तो उससे बेटर शिप प्रेफर करूँ, ट्रेन से बेटर, क्योंकि ट्रेन जो है वो नॉइजी होती है. पर इन सब चीज़ों से तुम नहीं डरी, तो तुम स्कूल जाने से क्यों डरती हो? जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन बैम्बू क्लम्प. उसने कहा कि जानवी को ये मालूम ही नहीं था कि स्नेक कहाँ रहता है, बैम्बू क्लम्प में. ठीक है. व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड. Big boats, like said the river, so big that they can take hundred of people, and they sail along the sea with lights and that shine all night. तो उसने बताया रिवर ने कि शिप्स क्या है. जानवी ने क्वेश्चन पूछा शिप्स क्या होती हैं. तो उसने कहा बिग बोट्स होती हैं जिसमें हंड्रेड ऑफ पीपल जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, और वो जो है वो सी में सेल करती हुई लाइट्स उसमें जलती रहती हैं और वो थ्रू आउट शाइन करती है ऑल नाइट. जानवी हेल्ड हर ब्रेथ. विल दे कम हियर, शी आस्क्ड. उसने पूछा, जानवी ने अपनी सांस रोककर पूछा. ठीक है. क्या यहाँ पे आएंगी शिप्स? आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर. टू लार्ज, यू नो. चंदू's catamaran is good enough for me. चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे. तो उसने बोला कि यहाँ पर वो फिश जो यहाँ पर है वो शिप्स नहीं आ सकती क्योंकि वो बहुत बड़ी शिप है. ठीक है. कैटरमैरन को क्या होती है, एक तरह की एक बोट होती है. ठीक है. So catamaran is a kind of a boat which is basically you can see these in
the areas like Uttar Pradesh, West Bengal, and it is used for fishing. Boat is used for fishing. Okay, so uh, Chandu's catamaran is good for me. Chandu can take you to see a ship someday. इसने बोला रिवर ने कि कैटरमैरन जो चंदू की जो कैटरमैरन है वो ही सही है, और वो जो है वो चंदू तुम्हें किसी दिन शिप दिखाने के लिए ले जाएगा. दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी. क्या? तो जानवी ने कहा नहीं, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे. वेल्ड मतलब कंप्लेन करना किसी लाउड वॉइस में. क्या? जब हम जोर से किसी से कोई बात करते हैं और हम कंप्लेनिंग, जब हम कंप्लेन करते हैं, कंप्लेनिंग नोट पे बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेल्ड. ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू. उसने कहा पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो, और ये सब कुछ जो है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे स्कूल जाती हो. जानवी gathered courage. The next day she reached the school, panting and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. तो जानवी ने नेक्स्ट डे करेज जो है वो, उसके अंदर करेज आ गई, हिम्मत आ गई, और वो स्कूल गई नेक्स्ट डे. पैंटिंग मीन्स होता है जब आप बहुत तेज तेज भागते हो तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, जैसे आप रेस करते हो. ठीक है, तो जब आप रेस करते हो तो आप भागते हो. ठीक है, भागते हो तो सांस हमारी जब हम रुकते हैं तो फूलती है बहुत ज़्यादा, उसे हम बोलते हैं पैंटिंग. ठीक है, आउट ऑफ ब्रेथ. एंड आउट ऑफ ब्रेथ मतलब सांस जो है वो, उसको ऐसा लगता था सांस जो है वो बहुत तेज से ले रही है, सांस फूल रही है. ठीक है, और वो डोर के पास जाके खड़ी हो गई, और टीचर ने जो लेसन समझा रही थी या रीड करी थी उसको सुनने लगी. इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम अ ग्रेट किंग. क्या स्टोरी थी जो टीचर बता रही थी? प्रिंस अशोका की स्टोरी थी कि वो एक जो है वो किस तरह से वो एक ग्रेट किंग बना. लिटिल अपू हैड फॉलन asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, sweating with the others, and on the earthen floor. Little Apu made no noise, and she listened. सो जो ये स्टोरी थी, जो अपू था, उसका जो ब्रदर था लिटिल अपू जो है वो उसकी गोदी में ही जो है वो शोल्डर पे ही सो गया. और वो धीरे धीरे जो है वो शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर टिल इट वाज दी बैक रो. बैक रो पे आके वो जो है वो वहाँ पर जो है वो रुक गई. ठीक है, स्क्वेटिंग मतलब अपने आप को रेस्ट देना. टू रेस्ट विद योर वेट ऑन द फीट, फीट पे वेट डालकर रेस्ट देना. योर लेग्स बेंट एंड योर बॉटम जस्ट अबव द ग्राउंड. ठीक है, वो वहां पर जाकर जो है वो स्क्वेटिंग मतलब स्क्वेट की पोजीशन में जो है वो बैठ गई, फ्लोर के ऊपर जो है वो सबके साथ नीचे बैठ गई. लिटिल अपू जो है उसने कोई साउंड नहीं की, कोई आवाज नहीं करी, और वो जो है वो जानवी जो है वो चुपचाप से सुन रही थी. Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. तो जो टीचर है उसने पूछा कि तुम कहाँ से आई. स्प्रिंग फ्रॉम मतलब तुम कहाँ से आ रही हो लिटिल गर्ल, और क्या तुम तुम्हारा नाम क्या है, और क्या तुम न्यू एडमिशन हो. She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. It's Janvi, said another. So you are Gopi's little sister. Nice, lad Gopi. So किसी ने बताया कि गोपी की सिस्टर है, और गोपी जो है वो नेक्स्ट क्लास में है. ठीक है, सो जानवी, इट्स जानवी का नाम बताया. ठीक है, तो टीचर ने पूछा अच्छा तुम गोपी की सिस्टर हो. इफ यू इफ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल जानवी, द टीचर had said, we will talk to your father about it. Don't you worry, we will find a way. So टीचर ने क्या बोला, अगर तुम हमारे स्कूल आना चाहती हो जानवी, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे फादर से बात करेंगे और तुम्हें जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे. जानवी saw the teacher walking up the steps in to their gate the next evening when she was lighting the lamp. तो जानवी ने देखा कि जो है वो जो टीचर है वो उसके गेट के पास जो है वो स्टेप्स पे चढ़ रहे थे, और जब जानवी जो है वो लैंप को लाइट कर रही थी, लैंप जला रही थी. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she could not make out. तो जानवी के जो फादर थे वो अपना चीक जो है ना वो इस तरीके, अपना जो चीक है वो उसको स्क्रैच कर रहे थे, और
ऐसा लग रहा था कि वो कुछ परेशान से हैं, और टीचर भी कुछ नॉट कर रहे थे, वॉज नॉडिंग मतलब सर हिला रहे थे और कुछ बोल रहे थे जो जानवी को समझ नहीं आया। एंड मदर सेड, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। और मदर ने क्या बोला कि मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। व्हेन आई वाज your age, I wanted to go to school, but my grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. तो मदर ने क्या बोला कि गर्ल्स जो जितना पढ़ना चाहे उनको पढ़ना चाहिए, लर्न करना चाहिए। जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मुझे जो है, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, पर तुम्हारी जो मेरी ग्रैंड मदर थी उन्होंने स्कूल नहीं जाने दिया। बट मैं इतनी खुश हूँ कि टीचर खुद आए हैं तुम्हारे फादर से बात करने के लिए। And Janvi said, Mother, when I grow up, I'll be a teacher and I'll go from house to house in the village and ask the little girls to come to my school and I'll teach them all that I am going to learn. तो जानवी ने क्या बोला कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं टीचर बनना चाहूंगी और मैं घर घर जाकर विलेज में छोटी छोटी जो गर्ल्स हैं उन सबको बोलूंगी कि वो स्कूल में पढ़ने के लिए आए और मैं उन्हें खुद से पढ़ाऊंगी। And she went down the path between the fields. The next morning, before she began to meet the river, I did it, she told the river. So अब जानवी जो है वो वापस फील्ड्स में जा रही थी, ठीक है। स्कूल जाने से पहले वो रिवर से मिलना चाहती थी, क्योंकि रिवर ने जिस तरीके से उसे इनकरेज किया वो वहाँ पर स्कूल जा पाई और फिर वो बताना चाहती थी कि मैंने आई डिड इट, मैं स्कूल जा रही हूँ। आई वॉज स्केयर्ड बट आई डिड इट and they are letting me go. I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. So अब वो बताना चाहती थी रिवर को कि मैंने कर दिखाया, मैं डर रही थी पर मैंने तब भी करा और अब मैं जाकर अपना नाम लिखना सीखूंगी, सम्स करना सीखूंगी और ये भी जानूंगी जो उसके वाइस थे उनके क्या आंसर हैं। जैसे लिटिल फिश जो है राइस फील्ड में जाके ऐसा क्यों लगता है कि वो फ्रॉग्स हैं, उसमें क्यों चेंज हो जाती हैं। शी हर्ड द रिवर्स स्लीपी चकल, चकल मीन्स टू लाफ क्वाइटली, धीरे से आवाज, धीरे धीरे हंसना, जब हम धीरे धीरे ही करके हंसते हैं उसको कहते हैं हम चकल। तो शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट शिप्स दैट सेल द सी। सो रिवर ने बोला अब स्कूल वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब शिप देखना चाहती थी तो दोबारा आना और मैं तुम्हें सब शिप्स के बारे में बताऊंगी जो कि सेल करती हैं सी में। कमला नायर, this extract adapted from the day the river spoke. So Kamala Nair is the writer over here. Okay, so I hope you have understood the lesson. I have shared with you the extra word meanings also, and we'll be doing the question answers, the back exercise of this lesson in the next video. I hope you have understood the lesson about this girl Janvi who wanted to go to school and her parents were not allowing her to go to school because she was taking care of her brothers. One day when she was sitting beside the river encouraged her, motivated her to go to school, so she was able to fulfill her dream of going to school, and then she was very happy. So I hope you have understood the lesson. Please do subscribe my channel and like my video. So now I'll meet you soon in my next video with the question answers of this lesson. Up till then, take good care of yourself. Goodbye. Thank you for watching.